Hi, my name is Om. I am a past student of Andrew sir. Coming back here today feels like entering a time machine. Same benches, same energy, same sir, just a few more white hairs. But today, instead of Andrew sir teaching us, we are going to share what we have learned from here since we have left these classrooms. Well, before you start panicking, don't worry. We are not here to teach you accounts or stats. We are here to start something interesting, something fun, something that we call the AJN Round Table. Well, it's not really round, but yeah, that's what we call it. It's not a test, it's not a lecture, but a beautiful combination of both. Hi, my name is Mano Dungrani. I was a student of Andrew sir. Now usually you see Andrew sir on mic. You are probably wondering what I am doing here. Well, it's Teachers Day and today we have hijacked Andrew sir's place. That's right, students are running the show. And I'm Sarah, also a proud Andrew Sir student, and all of these past students here have gathered here today to talk, laugh, and remember, cause we also might spill some beans and tell you some secret from our AGN journey. So this Teachers Day, sit back and relax because Andrew Sir's classroom is officially hijacked by us. So it's Teachers' Day today, and my students have decided to steal the mic. And I'll surely allow it because aaj unka din. And today on Teachers' Day, I believe that the teaching profession is not only about teaching, but it is about teaching and learning. And that is what AJN Roundtable is all about. So let's get into it. Sir, what was your first impression of our batch when we joined? Oh my God, don't make me remember that day. When your batch came in the class for the first time, all the eyes looking at me कि अच्छा कॉमर्स में हम लोग आज कुछ सीखने वाले हैं, कौन आया ये इंसान, हमको क्या सिखाने वाला है. मतलब sometimes the feeling is mixed. For the students it is like butterflies in the stomach कि हमारे लिए एक नया जर्नी शुरू हो रहा है. But every time a new batch comes in, on a lighter note I told this, but on a serious note, मैं हमेशा ये मानता हूँ every time a batch comes inside the classroom, I feel them that carbons have entered and those साल में we have to convert those carbons into diamonds and we need to sell. And I'm so glad today we are having some diamonds, right? All Kohinoor diamonds. Rather, I would like to ask you, चलो मानो मैं आपको पूछता हूँ, what was your impression when you came in the class first? मतलब आपका क्या expectation था, आपका कैसा वो feel था जो first day आप class में enter हुए? सर मैं फर्स्ट डे क्लास में एंटर हुआ तो पहले तो मैंने देखा तो सब फ्रेंड्स आ गए थे, बस सब फ्रेंड्स साथ में आए थे. पर अचानक से ना आपने एंट्री मारी ऐसे ऐसे स्टेज पर चढ़े ऐसे. फिर मैंने सोचा कि मैंने आपको पहले बार नहीं देखा था, मैं ऐसे एडमिशन ले लिया था मैंने. अच्छा ओके, आपने मिला ही नहीं था? हाँ, मिला ही नहीं था. ओके. फिर मैंने देखा कि ये कौन आया, तो मेरे बाजू वाला बोलता है चुप हो जा, एंड्रू सर आ रहे हैं, एंड्रू सर आ गए. फिर मैंने बोला कि ये एंड्रू सर है. फिर मेरे को पहली बार पता चला कि ये एंड्रू सर है. अच्छा ओके, तो आप आपने मिला ही नहीं था एडमिशन? नहीं मिला. ओके. फिर आपने इंट्रोडक्शन दिया आपका. मतलब आप क्लास में एंटर करते हो ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, नो वुड मूव लाइक हियर, नॉट लुक हियर, नॉट देयर, नथिंग. वो कंसंट्रेशन तुरंत आ जाता है. 100%. और आपके डिग्रीज गिनते गिनते हमारी उंगलियां खत्म हो गई. ओह माय गॉड. एक्चुअली फिर आपने बोला भी था कि इतनी मैंने लिखी है मेरे बैनर पे, अभी थोड़ी इनकमिंग है, तो मैं भी पढ़ रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप भी पढ़ो. And Yes, I told that. You remember? Yeah. Yes, and I just still remember 11th standard में we came. I have not gone to tuition still. 11th was my first year with tuition. अच्छा, till 10th you were never in any tuition. Yeah. Okay. So I came to the class. I was sitting on the bench. I still remember on the second bench, and suddenly you opened those doors and said, "Good evening, 11th." Okay. And the second question you asked was, "How are you all?" And we said, "Good." And us din se na, the second sentence you used was, "Yeah, till now you all were good, but now since you have met me, so now you all are excellent." And whenever I ask you, you all will say that yes, we are excellent. So that was the first super. impression. We know that this person is so much full of life that we are gonna have a good journey, new experiences every day. Okay, so I think that was the first experience that you had. Okay, how to be an excellent. And वही जर्नी रहता है हमेशा, बिकॉज आप हर एक जगह पे देखो मैं कोई मटेरियल प्रिंट करूँ या इफ आई एम टेकिंग आउट सम प्रोस्पेक्टस, एक वर्ड जो मैं हमेशा यूज करता हूँ दैट इज एक्सेलेंस.
एक्सेलेंट, एक्सेलेंस, एक्सेलिंग इन एवरीथिंग दैट वी डू. सो इसलिए मैं कहता हूँ कि व्हेन वी कम इनटू द क्लास, यू नो, एक वाइब क्लासरूम का भी ऐसा होना चाहिए कि वी आर नॉट मेड ओनली टू बी गुड, बट वी आर मेड टू बी excellent. Wonderful. Sana, what was your experience when you came in the Sir, class for the first actually, I time? had met you for the first time, so I know this was Andrew, sir. Okay. But if I wouldn't have met you earlier, then also the way you entered with confidence, standing on your toes all day long, I would have known that 100% this would only be Andrew, sir. Oh, thank you for that. Thank you. You know, आज आप लोग के पास से सुन के मुझे ऐसा लग रहा, अच्छा मैं ऐसे क्लास में एंटर होता हूँ. I'm so glad we are having a round table today. Okay. Mano, I want to ask you that what role sir has played in your life after you met him or joined AGN? तो बेसिकली मैं सर के पास से है ना एक चीज़ सिखाऊँ. ऐसे तो बहुत सारी चीज़ सिखाऊँ. बेसिकली एक है कि सर हर बार ऐसे बोलते रहते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है ना, तो ऑलवेज चूज़ हार्ड है. कोई भी दो ऑप्शन है तो जो भी हार्ड वाला है वही चूज़ करने का. क्योंकि ये सर का कहना ऐसा है कि हम जो भी हार्ड चीज़ करोगे, जो भी वो दूसरे लोग नहीं करेंगे, कि वो आपको है ना इरिप्लेसेबल बनाएगा आपको. For me, sir, if I would say the one trait of sir is he's very inquisitive. He's a kind of personality के आप 2 मिनट की कॉन्वर्जेशन करोगे ना सर के साथ, तो आपको ऐसे अंदर से होगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू नो दिस पर्सन मोर. दिस पर्सन इज फुल ऑफ सो मैनी थिंग्स. सो यू नो, सर की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ही मेक्स यू कंफर्टेबल वाइल टॉकिंग टू हिम. He would share his experiences, and I have not seen a person who is more lower to earth than him. I mean, a person holding so many degrees, so many gold medals. Still, every day we don't see a sir teaching us. We see a father, we see a big brother coming to the class and teaching us. So we'll never have that student-teacher wala friendship with sir. And yes, second thing, sir always told us, you know, keep your nature like that of a grass and your character like that of a star. And that's what my life motto has been from that day. Also, if we all are talking about what Andrew sir has taught us, then I just want to say that he has not just taught us education, but not just the essence of education, but he has taught us more than that. He has always told us that एजुकेशन में मार्क्स ज़्यादा लाना और कोई सब्जेक्ट को मास्टर करना इज़ नॉट इनफ, बट बिल्डिंग अप एथिक्स एंड कल्चर is very important for you, because that is what is going to help you navigate your life in future. वैसे भी इधर तो 4 subjects. It's just we are not taught only the 4 subjects. Ethics, disciplines, everything is bifurcating from the 4 main subjects. But हम actually education से ज़्यादा इधर ethics, discipline, life lessons ज़्यादा सीखते हैं. He not only frames us in 4 main subjects, he makes us so much capable कि after 12th when we step out into the real world, हमें डर ना हो. We actually know how the outside world is. And 2 years के span में ये कराना is a very big task. But that person, from the very first day, he just gets into that journey. And for him, each one of us, I mean, he teaches so many students every year, but for him, every year is a new start. Every new student is a new, he actually calls, you all are different brains from me, and all I have to do is brain you all together in a single circle. And he actually does that very well. Thank you. You know, I'm getting nostalgic when I'm listening to all of you people कि हाँ ये सब मैंने बताया था करके, and these are the things what I believe in, you know. When I come to take a class, मेरे को generally many people they ask, do you take notes for taking a particular session if you have to take a 2-hour class? I tell no. मैं frankly एक जन को बता रहा था, when I come to teach, I don't even have my own textbook, you know. I'll come to the class and देखूंगा किसके पास से textbook उठाऊं करके, and then I start with that, because my preparation is not exactly for that particular topic. मैं हमेशा यही कहता हूँ, my life is my preparation. How I prepare for everything. You know, this is when you become real. This is when you're teaching from the heart. You're not teaching from the mind. When you're teaching from mind, you are mechanical. When you're teaching from the heart, you really feel कि हाँ आज स्टूडेंट्स को हमें ये सिखाना है. एंड आप लोगों ने जो मुझे एग्जाम्पल्स दिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब आपके क्लास में आता हूँ वो टाइम पे तो मुझे पता भी नहीं होता कि मैं ये एग्जाम्पल बताने वाला हूँ या ये लाइफ लेसन आपको मैं बताने वाला हूँ. It's purely random, it is purely situational,
And I would like to take one thing from all the three of you that you told, because this has taken me down in the lane of my memory. मानव ने जो कहा कि whenever this is what Manav I always believe in and I always stand for, कि whenever life gives you two options, choose the harder way. ये तीनों जो आपने मुझे अलग अलग इंसिडेंसेस बताए, अलग अलग एग्जांपल्स या कोई कोट्स बताए, इसमें एक कॉमन लाइन लेट मी ड्रॉ. You told that I always believe and I always tell one thing, Diya, very rightly. When it comes to your nature, be like the grass. It's accessible for everyone. But when it comes to your character, be like the star of the sky. People can just look at it, see it, salute it, but cannot even dare touch it. So that is one thing. And Sarah, what you rightly pointed out. Every Teacher's Day, I remember this sentence, that the essence of education is probably not only topping the subject or not only getting good marks, getting good ranks. The essence of education was, is, and will always be having a good culture and having a good ethics. अब ये जो मैंने तीनों लोगों ने आपने मुझे जो ये इंसिडेंसेस याद दिलाए कि ये मैंने आप लोग के साथ कभी बैच में डिस्कस किया था, ये सब में कॉमन पर्पस एक है. लाइफ इज अ हायरार्की, इट्स अ ट्रायंगल. जितना नीचे हम रहते हैं उतना हम ज्यादा लोगों के साथ कंपीट करते हैं. वेन यू चूज द हार्डर वे, वेन योर आपका जब किरदार मजबूत होता है, वेन आर कैरेक्टर बिकम स्ट्रॉन्गर, वेन आर कल्चर एंड एथिक्स बिकम स्ट्रॉन्गर, ग्रेजुअली हम वो हायरार्की में धीमे 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 वी आर कमिंग अप, एंड देन वी आर कंपीटिंग विद लेसर नंबर ऑफ पीपल. वी आर कंपीटिंग प्रोबेबली ओनली विद आवरसेल्व्स, एंड देन देयर इज नो कॉम्पिटिशन एट ऑल. Because you are not in that mindset which is there in the bottom of the hierarchy. So मैं हमेशा से कहता हूं कि एक चीज जो मुझे मेरे हर स्टूडेंट को सिखाना है, right from day one they come till the final day when I tell them tata bye bye, is that have a strong mindset. And ये सब जो आप लोगों ने सीखा, this all combinedly it comes into the mindset. Thank you all for taking me down to that journey. Diya, if you could ban one subject forever, which one would it be? Okay. For me it would be statistics. बहुत सारी formulas learn करनी पड़ती है. You know, formulas याद रखो. एक formula की 3 methods में फिर पहले question में mean निकालो, फिर check करो कि कौन सी method आएगी. और difficult task. So yeah, if I would wish कि मुझे ऐसे statistics was something कि नहीं करना है. तो if I get a choice कि 4 main subjects में से कौन सा बैंड करना है, तो फॉर मी इट वुड बी स्टैटिस्टिक्स एट एनी पॉइंट. Yeah, but from 4 main subjects, apart from it, I would like फिर तो मैं 3 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ूंगी ही नहीं, बिकॉज अगर एंड्रू सर रोज बिठाए इधर 4 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, आई एम रेडी टू स्टडी ओनली दोस 4 सब्जेक्ट्स, और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है मुझे. Sir, do you still remember our funniest or most memorable batch moment? See, every batch has many funny moments and very impromptu moments. It keeps happening. Do you remember any? आप बोलिए. And then I'll add some to it. Sir, आपने bounce back कर दिया ये वाला तो. Any funny moment that happened with any student or anything that happened? सर एक है, पर थोड़ा पर्सनल हो जाएगा. सर, क्योंकि वो आप पता है कॉमा को कमा बोलते हैं. कमा ही बोलते हैं. कमा. तो सर वो इंसिडेंट आपने पहली बार कमा बोला ना, तो उसके बाद तो सर बहुत वो वाला है. वो चलेगा अभी, वो डोंट विल नॉट टेक इट. एनी अदर इंसिडेंट्स के किसी को याद आ रहा है? इंसिडेंट्स तो नहीं, बट हाँ इधर जब किसी स्टूडेंट का फोन बजता है, आई मीन दैट्स द टाइम जब एक्चुअली तुम पिन गिराओ तो एकदम ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, एंड जो स्टूडेंट का बजता है वो तो बेचारा ऊपर से नीचे पूरा पानी himself and he goes अब out वो of the यार class. ही नोज के अब खत्म हो गया, अब आज नहीं बैठने को मिलेगा. No, the whole purpose for that is, one is concentration and one is what I still follow. You know, आज भी अगर मैं कोई सेमिनार या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाता हूँ, I don't even carry my phone in that. Or if it has to be carried, I put it on a switch off mode. You know, क्योंकि मैं ये मानता हूँ this is the respect of the classroom, or this is a respect towards the person who is telling कि now sir my undivided attention is towards you. This is what I always believe. एक इंसिडेंस आप लोग के बैच में तो नहीं था, अभी एक बैच में रिसेंटली हुआ. Let me take up that.
एक स्टूडेंट आया, आने में थोड़ा लेट हो गया, एक दिन पहले एब्सेंट भी था, अभी 2 दिन पहले हो, मतलब आपके जूनियर वाले बैचेस में हुआ होगा. एंड क्लास के अंदर सडनली आई स्टार्टेड द क्लास एंड देन ही एंटर्ड. ही वाज 5 मिनट्स लेट. फिर मैंने उसको पूछा कल क्यों नहीं आए थे, व्हाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे? तो ही टोल्ड, सर अचानक से ऐसा हुआ, मेरे दोनों लीवर में मेरे को बहुत ज़्यादा पेन आ गया था एंड डॉक्टर टोल्ड के यू हैव टू टेक रेस्ट करके. और मैं वो टॉपिक के ध्यान में था तो मैंने भी उसको ओके करके बोला और वो जाने लगा. फिर मैंने वापस उसको बोला, मैं बोला 2 लीवर कब से आने लगे? सी वी आर अ कॉमर्स इंस्टीट्यूट, अपना डेबिट क्रेडिट होता है सब कुछ, पर फिर भी इतना तो पता है कि यार लीवर तो एक ही आता है. फिर वो फर्स्ट बेंच में बैठा, उसको देख के पूछ रहा है तो बेस हुआ आवे, तो वो बोला किडनी आवे. अब वो ही कंफ्यूज हो गया, उसको किधर दुख रहा है. मैं बोला तू बैठ, उसके बाद तो तेरा एक्सरे मैं लेता हूँ, तो बैच खत्म होने दे. सो दीज ऑल इंसिडेंसेस इट कीप हैपनिंग. 11th स्टैंडर्ड के क्लास में अभी मैं ओसी में आई वाज मेकिंग देम रीड द एग्जांपल्स ऑफ बैंक्स. अलग अलग बैंक के नाम लिखे थे. नाउ बीइंग अ सीए ऑब्वियसली मुझे तो सारे बैंक्स के नाम पता ही होंगे. उसने बैंक का नाम एक रीड किया. आई वॉज लाइक सरप्राइज्ड कि आई वॉज फीलिंग गिल्टी कि यार ऐसा एक बैंक इंडिया में आया और बुक ने एग्जाम्पल भी दिया और मुझे ही नहीं पता करके. एंड ही रेड द एग्जाम्पल, इकी करके बोला. मैं बोला ये कौन सा नया बैंक आया? फिर मैंने उसके टेक्स्ट बुक में देखा, फिर मैंने उसको बोला इसको आईसीआईसीआई करके रीड करके यू डोंट रीड इट एज इकी. मतलब तब वो लड़के को देख के मुझे ऐसा लगा ये मेरी अभी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको 2 साल में मेरे को क्या कन्वर्ट करना है करके. समटाइम्स आई गेट स्कैर्ड लुकिंग एट द रॉ मटेरियल, but that is what is challenge all about, the journey of learning and teaching. So Om, since you have this such a great result, 100 on 100 in all 4 subjects, which is a very big deal. So do you knew that you were going to get such great result, or was it a surprise for you yourself? Of course, I didn't know that. It means like 100 on 100 in all 4 subjects that he teaches. It's like a dream for me as well. I only thought that I will be getting A1 and I was happy about it that I will get it, but getting such result is like a surprise for me as well. I would like to add, me and Andrew sir, we were together जब इनका result आया था. And yes, you were here, we were on a call. Andrew sir ने इनको phone करके पूछा congratulations. इनका reply was so nonchalant as if हाँ आ गए. I mean, you have scored 100 on 100 in 4 subjects. At that time I was in City Sumul Dairy branch. हाँ आप वहाँ पे आए हुए थे मुझे Nielsen called you. Yes, and I was here. Yes, continue that. When Yeah, I Andrew sir phone speaker पे था, all of the staff members we were listening. He was overexcited than Om was. He is congratulations. I'm proud of you, this and that. And he was very nonchalant. Like, okay. एकदम शांत. वो बोलता है thank you sir. उसके आगे he could not even say तो as if it was not a big deal for him. उसने बस ऐसे accept कर लिया. हाँ 400 आ गए 100 on 100 in all the 4 subjects. And such a unique achievement, all over Gujarat level पे देखो तो this is a rarest of rare achievement. Probability देखने जाओ तो it goes into decimals. 0.001 में जाएगा to get 100 on 100 in all the 4. But this is what I'd like to add here one thing. And जो आपने मुझे बोला ना कि सर ओम के साथ आपने बात की और उसका result was, his response was so calm. So one thing that I would add here is, whether you have a success in life or you have a failure in life, उसका reaction बहुत matter करता है कि आप कैसे react कर रहे हो. I always tell, never take success to your head and never take failure to your hearts. मतलब आए हैं, okay. मतलब you should be calm in handling your success. You should be calm in handling your failure. Having said that, Om, congratulations from the bottom of my heart once again. मैंने आपको multiple time congratulations बोले because that's a unique journey, Because 4 subjects, all 4 subjects have different nature. कहीं पे numbers है तो कहीं पे आपको theory लिखना है तो कहीं पे आपको diagram बनाने. And the best part is all 4 papers being checked in different cities by different people who have different bent of mind. Different teachers checking different with their own expertise. उन लोगों ने वो paper check किए. And if they come to a common conclusion, and when it is being uploaded, वो time पे जो और हम लोग जब वो result देखा हम लोगों ने, I was really very glad. But what would you like to add about it? मतलब आपके, can you give some tips और कुछ add कर सकते हैं आप to the students who are listening to this? Tips तो sir, I would like to say that what Andrew sir gives his material, what hard work he has done to made it. We just have to follow what he gives us, what the strategy has made. All are 100% very effective, sir. I have nothing different I have done. Really? Okay. Really,
ओनली लिसन टू यू एंड डन. क्लास में जो किया घर पे जाके रिवीजन, आपने जो क्वेश्चंस दिए घर पे जाके प्रिपेयर करना है, बस. ओके, नथिंग एक्स्ट्रा. नथिंग एक्स्ट्रा. वंडरफुल. एक बार मैं सब फ्रेंड्स बैठे थे, वी आर डिस्कसिंग, अगर आप सातों सात सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते, अच्छा, किसको पता मुझे 700 आउट ऑफ 700. फिर ऐसे नहीं कि गुजराती में फेल हो जाते. क्या बात है, गुड. मतलब इसमें से अभी भी ये जो बोला उसमें से एक चीज सीखने जैसी बहुत अच्छी है. कीप थिंग्स सिंपल. सिंपलिसिटी इज ऑलवेज द किंग. Was and it is always. मतलब keep things simple. That's good. And one thing I'll add on that, efforts बहुत matter करता है. How genuinely you are putting the efforts. I always tell don't worry about the results. वो शायद हमारे हाथ में नहीं है. Worry about the efforts क्योंकि वो हमारे हाथ में है. सर इसमें आई ओनली लाइक टू ऐड वन मोर ट्रेट. Okay. जो आपने बोला कि ओम का रिएक्शन वाज वेरी सिंपल, ये भी हम बोले ना तो हमने आपसे ही सीखा है. मतलब वेन एवर यू कम टू द क्लास, हमारे बोर्ड्स के 2 months पहले 3 months पहले, वी हैव नेवर सीन दैट हंगर इन यू कि आप लोग मार्क्स लाओ ताकि आपके इंस्टीट्यूशन का नाम आए. फॉर यू आपने हमेशा ऐसा सिखाया हमको, इंडिविजुअल प्रोग्रेस इज द बेस्ट प्रोग्रेस. आपने कभी हमें बेंचमार्क नहीं दिया है कि इतने मार्क्स स्कोर करो, ना ही आपने बोला है कि मुझे इतने A1 ग्रेड्स चाहिए. एंड बेसिकली सर आप जो नहीं बोल के the way you are getting results, that is your biggest achievement. तो हमने ये जो सीखा है ना कि don't get mad behind marks. मत भागो कि इतने आने चाहिए. That's what we have seen you. That's the attitude that we see you. आप हम पता है बोर्ड्स के 1 week पहले भी आपने क्लास में आके बोला था जो भी रिजल्ट आए. For me, all of you, the progress that I have seen, all of you from 11 to 12 is the biggest achievement for me. Yes. इसीलिए फिर सर हम 400 लाए या चार सब्जेक्ट में 95 प्लस आए. इट डज नॉट एक्चुअली मैटर टू अस आल्सो बिकॉज कंपेयर टू द मार्क्स हमारी जो जर्नी रही है 2 years की, वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल रही है. बिकॉज हमने टेक्स्ट बुक के वो सम नंबर ऑफ पेजेस से ज्यादा हमने जो आपसे नॉलेज ली है, हमने जो केस लॉ सीखे आपसे, हमने जो आपसे डिसिप्लिन एथिक्स सीखा है ना, वो एक्चुअली वो कोई मार्क्स कंपेयर ही नहीं कर सकता है. Thank you, Diya, very well. And this legacy continues. 2 दिन पहले ऐसा हुआ, one of my student, 12th standard में वो लड़की पढ़ रही है. She was talking to one of my staff outside the door and I overheard. उसको ये पता नहीं था कि मैं अंदर हूँ. तो she just casually went and one of my staff उसने पूछा कि recently स्कूल में कुछ एग्जाम्स खत्म हुए तो क्या रिजल्ट आया आपका करके. And she so casually having the bag on her shoulder, she is walking in and she is telling 4 divisions मिला के फर्स्ट रैंक आया. मतलब स्कूल में 4 divisions. And my staff was like, okay, मतलब we take it very lightly. और वो स्टूडेंट के अंदर भी we put it. And then she was walking in and then she was not knowing कि मैं डोर के पीछे हूँ, मैं सुन रहा हूँ. और वो स्टाफ ने बोला कि सर को बोलना है, मतलब सर अभी आएंगे क्लास में तो यू वांट टू टेल. और वो लड़की का रिएक्शन, अब ये बात थोड़ी एंड्रू सर ने किया. तब when she went inside and classroom में आके वो बैठी और उसके बाद मेरे स्टाफ ने जो मुझे देख के स्माइल किया एंड आई टोल्ड जीत गए हम लोग कि दिस इज व्हाट वी वांट आउट ऑफ द स्टूडेंट. इट इज नॉट लाइक दैट शाउटिंग ऑन द टॉप ऑफ द वॉइस कि आई हैव डन दिस एंड दैट. द ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैटर्स. नंबर्स फॉलो. If you get numbers doesn't mean that you are having the transformation. If transformation is there, numbers follow. Good. You again brought these some of the niche factors of our institution today. सर ऐसा अगर हमें तो अपॉर्चुनिटी मिले ना, हम तो अभी भी रोज 2 घंटे आए आपके पास पढ़ने के लिए. नहीं भाई, अभी मेरा जो क्लासेस है वो करवाने दो मेरे को. आपको तो और 2 साल हो गए, मेरे पास और बहुत कुछ है सिखाने को. वही तो सर, अगर आप हमें बोलोगे ना ये इंस्टीट्यूशन छोड़ने का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है, तो यही है. पता है, यू यूज्ड टू कम टू द क्लास एंड टेल दैट आई एम अ पॉट फुल ऑफ नॉलेज. तुम जितना ले सकते हो ना ले लो. हमें अब यही रिग्रेट होता है, 2 साल तो ऐसे निकल गए, हमें तो सिर्फ इतना ही मिला. आई मीन इफ वी कुड गेट अ मच मोर बिगर टाइम, अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम टू स्पेंड विथ यू. हम ये सोचते हैं आपने 2 साल में हमें ऐसा ट्रेन कर दिया है, अब अगर इफ मोर टाइम तो वेयर वुड वी हैव बीन. Okay, so nice to know that, But the farmer who puts the seed then leaves it to the sunlight, how the tree grows. So our work is like putting the seed, giving the basic nourishment, and I'm so happy that the seeds that we put are now sprouting up and getting fantastic results. So kudos to all of you, because who we are is incomplete without what you are. Because हम अगर एक झाड़ बना रहे हैं तो you are the fruits of those trees.
and the tree is judged by the sweetness of the fruits. But sir, for that fruits to be sweet, we need the tree to be very much strong. Yeah, definitely. And I believe that we are handling all these branches and fruits well. Yes, you have rendered the base so strongly that we know कि कोई भी पॉइंट पे कहीं पे भी अगर इतनी सी भी प्रॉब्लम हमें आई ना, वी नो that person is standing right behind us. Oh. That's the confidence that you have gained from all of us. And that is what I always tell my students also. हर बार हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, गिरो, घुटने पे चोट आए चलेगा, लगा चलेगा. Life is not about failures. It's about whether you get up or not. Fail, गिरो नीचे, पीछे हैं हम लोग, like what you told, always, ठीक है? कहीं कुछ इश्यू आया तो we are there to carry you, we are there to pick you up. Looking at all four of you, मेरे को तो मन कर रहा था जैसे ही मुझे बताया गया कि एक राउंड टेबल टॉक रखते हैं, I would always love to call all of my students. But randomly, इन्होंने मुझे बताया गया कि सर 4 स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करते हैं, मतलब we wanted you to, मतलब आप लोग अगर आज बैठे हो तो you are representing the entire community of the entire students that we have. So thank you for that. And I would like to take an opportunity here. आप 4 लोगों को जब मैं देख रहा हूँ, मतलब all the 4 of you who have completed your 12th last year, आप लोगों ने शायद नोट किया या नहीं, मैंने आप लोग के बारे में कुछ नोट किया. Should I share that with all of you? Yes, sir. चलो, उसमें एक सेशन ये लेते हैं कि आप लोगों का डाउट्स पूछने का स्टाइल लेट मी पिक. I'll start with Manav. Manav, are you ready? Yes. Manav was from the Sumalderi branch. Manav topped, just for your information, Manav topped Xavier. St. Xavier's he topped, so congratulations for that. Thank you, sir. Okay? Thank you. You did that in 11th standard as well, Yes. right? Okay, 11th as well as in 12th. 12. मानव है ना सुमोलडेरी ब्रांच में फर्स्ट बेंच में बैठते थे, बराबर? मतलब उनकी ऐसे मानव का डाउट पूछने का सेशन सबसे बढ़िया, सबसे टाइमिंग उसका था. क्लास मेरा खत्म होने के बाद जब मैं माइक निकाल रहा था तभी उसको डाउट याद आता. मोस्ट ऑफ द डाउट्स आई रिमेंबर, 90% ऑफ डाउट्स दैट ही हैज आस्क्ड मी वाज, मेरा क्लास खत्म हो रहा है, मेरा क्लास एंड हो रहा है, वो टाइम पे ही विल हैव, यू रिमेंबर आपके टेक्स्ट बुक में अपने पेंसिल से स्क्रिबलिंग किया होगा, एंड देन यू विल आस्क इट टू मी एट दैट टाइम. सो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट अबाउट यू. मतलब आपका जब रिजल्ट आया तब आपके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास में, तब मैंने बोला मानव विल ऑलवेज आस्क मी डाउट. और मानव के डाउट में एक और चीज थी विच आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट, मतलब अगर कोई स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उन्हें भी मैं ये बताना चाहूंगा. ही विल नॉट ओनली आस्क डाउट्स, बट इन केस मान लो 2 ऑप्शंस हैं एंड उसको आंसर आ गया, फिर भी वो मुझे एक बार पूछ लेगा, सर आवी રીતના જ કરવાનું હતું ને? You remember ऐसे used to ask me, sir આમાં આવી રીતના જ કરવાનું ને? એટલે it is to be thought like this only. So that is one thing I'll always remember about the way you used to ask doubt. वहां पे मुझे एक चीज आपकी पसंद आई, that is you'll always be inquisitive. मतलब when I'm teaching you'll always have a question mark on your head. मतलब that's very good. And batch खत्म होते टाइम पे he'll ask me, sir ये ऐसे ही करना है, ये ऐसे करना है. Coming to Om. Om would be on the 3rd bench, right? थर्ड फोर्थ जहाँ जगह मिले वहाँ, ठीक है? संगीत कुर्सी खेलते हो आप लोग. तो 3rd 4th बेंच में बाहर से बैठता था. And his style of asking most of the time the doubts will be when I am on the rounds. मुझे याद ही नहीं कि पूरे बैच में इसने कभी मेरे को डाउट पूछा होगा हाथ ऊपर करके. 1-2 बार मैंने उसको मुझे ऐसे भी याद है, मैंने पूछा था ओम कोई डाउट है, उसका रिप्लाई यही था, बद्दा है बद्दू पूछ ही ली, तो इसलिए उसमें मेरा डाउट कवर हो गया. But when I'll be on the round and at that time he will ask me a question, not only the textual questions, मुझे अभी भी याद है आपने और शुभम ने मिलकर आपका एक करियर का क्वेश्चन था, वो भी आपने मुझे उधर से ही पूछा था. So that is one thing I always remember. Sara, always inquisitive, I'll always remember that. And her style of asking doubt was some in the class, some after the class. After the class she'll come with some sums. And one nature of yours that I'll always tell to students to follow is she'll never proceed unless and until that particular topic is not fully clear. वो गाड़ी हेल्प कि नहीं ये मुझे पहले क्रिस्टल क्लियर करना है and then only I'll proceed. About Diya, one thing I'll always tell, your concentration. Okay, your concentration was very strong. मतलब 2 hours का भी मेरा क्लास होता है, and that obviously for everybody, I would like to tell that. But I'll always see वो 2 hours में जरा सा भी आपका आई कॉन्टैक्ट मिस नहीं होगा. And that I really thank all of my students. आप 4, not only you 4 representatives, but all of them. A wonderful eye contact. You know, मतलब मैं 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 120 minutes में 1 मिनट भी कितने लोगों का ऐसा हम देखते हैं, एक फियर ही आई कॉन्टैक्ट मेरा रहता है सबके साथ.
इधर उधर ध्यान किसी का भी जाएगा नहीं. So that is one wonderful thing. I always tell these are the topics that I put into you through your eyes, so that eye contact is required. So that is one thing I'd like to appreciate all of you. Chalo, next question. So, sir, since you are such a great teacher for us, I want to ask you this question: that was there a teacher or a mentor in your life who shaped the way you teach right now? ओके, क्या बात है. अच्छा, पर्सनल क्वेश्चंस. ये भी प्लान था कि इम्प्रॉम्प्टू था? नहीं. 2 पर्सन्स, एक चाइल्डहुड जर्नी, एक उसके बाद का प्रोफेशनल जर्नी. चाइल्डहुड जर्नी, माय फादर, माय डैड. मेरे को जो भी मैथमेटिक्स वगैरह एवरीथिंग माय फादर हैड टॉट मी. तो एजुकेशन का जो एक मेन बेस मेरे अंदर डाला होगा तो दैट वाज माय फादर. ही टॉट मी नंबर्स, ही टॉट मी मैथमेटिक्स. मैं 5th में था तो ही वुड बी टीचिंग मी मैथ्स फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड बुक एंड द 9th स्टैंडर्ड बुक, एंड वन मोर थिंग आई लर्न फ्रॉम हिज इज पेशेंस एंड ह्यूमिलिटी. ये 2 चीज मैं उनके पास से सीखा हूँ. बट देन हिज बैकग्राउंड एंड एजुकेशन वॉज कंप्लीटली मैथमेटिक्स. सो जैसे ही मैंने कॉमर्स चूज किया 10th के बाद, his role as a teacher diminished. As a father was always there, but as a teacher diminished, because I still remember one fine day we were having tea and he told me, Andrew, now I don't understand debit credits and I don't understand commerce. I don't understand any of that, because he was completely into the science background or the mathematics background, specifically mathematics. And he had a state level rank also when it comes to mathematics. But the same, he never spoke about it and never told me about it. मैं उनके कुछ certificates देख रहा था तब मुझे पता चला. And then he was like, he never boasted about it or told about it कि state में कुछ rank था या वगैरह something. So this is how that continued. कि never take all these things very much to your head. उसके बाद one more person got introduced and that is Jai Chaira, Jai sir. तो मैं मेरा CA का जो जर्नी मैंने सीखा वो मैं जय सर के पास सीखा. जय सर के पास सीए जर्नी सीखने से भी साथ साथ में उनके पास से हम सीखे लाइफ लेसन्स. दैट इज वन थिंग वी स्टडी. एक बार क्लास में उन्होंने बोला था, क्वालिटेटिव सीए बनना है तो बनो, नहीं तो सीए बनने की जरूरत नहीं. मतलब ही वाज नेवर लाइक दैट कि बी क्रेजी बिहाइंड बिकमिंग गेटिंग दिस डिग्री. बी क्वालिटेटिव. सो दीज 2 people, sir, I would like to answer your question in this way. कि the early stage of when I was learning to walk, वो टाइम पे जब मुझे जो पढ़ा है दैट वुड बी माय फादर. एंड कॉमर्स में जिनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट रह चुका है दैट वाज जय सर. सो ऑन दिस डे आई वुड लाइक टू विश बोथ ऑफ देम अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. I'll ask a question to all 3 of you. What is your personal favorite trait of Andrew sir? Talking about Andrew sir, you should ask that which trait of his is not Not my favorite. actually. Basically, one thing is that Andrew sir would never tell कि he would be the same person when he enters the class every time. कुछ अगर सर के पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है या फिर if his previous class has irritated him, he would never change his attitude towards the class that he is teaching. He would always be that one person, with confident, जो जितना पढ़ाना है उतना, with full focus he would teach us. So it's nothing, even if something is bothering us, he would never, roll it down to us. So that is one thing that मुझे एंड्रू सर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी कि एंड्रू सर इतने प्रोफेशनल है कि मैंने अभी तक मैं जितना अभी 12th पास किया, अभी कॉलेज में हूँ, अभी तक मैंने ऐसा एक स्टूडेंट ऐसा एक पर्सन नहीं देखा कि एंड्रू सर से इसकी पर्सनालिटी मैच हुए. What, सर आप चलते हो सर, आप ऐसे सीना तान के ऐसे चलते हो सर. आई एम फैन योर. सब इतने कॉन्फिडेंट हो सर आप. ऐसी पर्सनालिटी सर आपकी. ये फीलिंग सच में आती है. आई मीन वी हैव वॉकड आउट इंडिविजुअल कैरियर्स में, वी आर वर्किंग, बट आफ्टर एंड्रू सर मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई टीचर नहीं आया जैसे अभी सर ने बोला कि 2 hours तक कॉन्सेंट्रेशन. वो दिस पर्सन अर्न्स दैट कॉन्सेंट्रेशन. बाकी सब तो व्हेन एनी अदर टीचर कम्स ऐसे 1 घंटे में, तब लगता है प्लीज अब ब्रेक चाहिए, अब ब्रेक चाहिए. एंड एंड्रू सर की क्लास में तो सर आप 8 से 8:30 खींचो, हमें तो वही चाहिए. यू स्ट्रेच इट टू 8:30. एंड सेकेंड, माई पर्सनल फेवरेट थिंग ऑफ एंड्रू सर इज के his determination. I mean, no matter how much that person is facing, how much difficulties he has in personal life, his determination to stand here on the stage every day at 6 o'clock
is the best. मतलब that he shows this कि for him everything comes second, but us, this institution and this profession comes first. I have seen him, वो अपने डॉक्टर के साथ फाइट करके आते हैं, आप मुझे इंजेक्शन दे दो, मैं इंजेक्शन खा लूंगा, उनके थ्रोट इन्फेक्शन Severe throat infection था, yes. but I will go to the class no matter what. I have seen उनके parents hospitalized थे, वो क्लास में आके हमें बोल रहे हैं कि कॉल हॉस्पिटल से कॉल आएगा ना तो मैं जाऊंगा. इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन तक ही कीप्स द डिटर्मिनेशन टू स्टैंड इन द क्लास एंड टीच ऑल ऑफ अस. उनकी प्रायोरिटीज बहुत अच्छे से सेट है, एंड फॉर हिम दिस इंस्टीट्यूशन is his first home, not the second home. उनके लिए always. this institution is the first home. You'll always seen him here. घर उनके वो अब क्लास में भी ऐसे बोलते हैं, घर तो मैं जाऊंगा, शांति से जाऊंगा, आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करो. आप लोग अपने डाउट्स क्लियर करो. मैंने शादी भी सैटरडे को की थी ताकि उस दिन क्लास You में told छुट्टी this in हो. the class. फिर भी पता है आप और विवेक सर एक काम के लिए क्लास आना पड़ा था और आप लेट गए थे. Yes, मेरे शादी के दिन मॉर्निंग आई वाज वर्किंग, यू नो, मुझे शाम को चर्च जाना था. एंड देन विवेक वाज टेलिंग मी कि सर जल्दी अभी खत्म करके आप जाओ. मेरी शादी में लेट गए. अरे मेरे नहीं लेट तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत लेट हुआ था. विवेक सर ने बोला एंड था विवेक ने मेरे को बोला सर अभी जल्दी जाओ, आपको भी तैयार होकर पहुंचने का, हमको भी तैयार होकर आने का है सर, हमको भी जाने तो आप भी जाओ करके. आई स्टिल रिमेम्बर, यू नो, उसी दिन मैं फिर विवेक से मिला. उसके बाद निकला मैं कुछ काम खत्म करके ट्यूशन का. उसके बाद बैंक गया था एंड बैंक में एक चेक कुछ क्लियर करवाना था. एंड वो काउंटर पे जो बैठे थे उन्होंने बोला कि हाँ थसे आराम थी वेट करो ने. फिर मैंने बोला मारे लगन में जવું છે, जल्दी काम बताओ. तो फिर उन्होंने बोला अरे थोड़ू लेट चला जो लगन में. मैंने बोला मारा लगन છે. तो इतना जल्दी उसने भी काम खत्म करके दिया. एंड देन वहां से आई गॉट रेडी एंड आई वेंट टू द चर्च. सो यू नो, डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स एनी वर्क दैट यू आर डूइंग दैट रिजल्ट्स इन द सक्सेस. This is the reason we'll always find his coat in his car. वो कभी कहीं पे रेडी होके नहीं जाता है. Wherever he has to go anywhere. Even अपने फेयरवेल पे भी 4:30 तक वो स्कूल पे थे. उन्होंने विवेक सर को कॉल किया था, विवेक पिक माय कोट एंड कम, मैं घर नहीं जा पाऊंगा. उधर ही थे और उधर ही कंटिन्यू करके फिर फेयरवेल शुरू किया था. बिकॉज हम जल्दी गए थे ड्यू टू सम रीजन एंड वी आस्क्ड सर आप रेडी होने नहीं जा रहे हो. तो मैंने विवेक को कॉल कर दिया ना, वो मेरा कोट लेके आ रहा है. इवन हियर आई हैव सीन हिम, बाहर होता है, he'll come here, he'll get fresh, फेस वॉश कर करके and he'll walk into the class. मतलब इसीलिए उनका एक कोट तो उनकी कार में हमेशा रहता है इमरजेंसी के You लिए. never know when you require to stand and speak immediately. मैंने सर ने एक बार बात बताई थी कि सर बोल रहे थे कि वो सर अपनी गाड़ी में है ना फॉइल पेपर में 2 रोटी रखते हैं. आज अभी भी even today. और 2 रोटी रखते हैं और जब सुमूल डेयरी से सिटी लाइट जाते हैं तो खाते हैं, ड्राइविंग करके करके खाते हैं. भाई सर That's my lunch. भाई वो सर बोलते भी है कि ever if you want to give me something to eat, give me something which is handy. तो मैं खा, मुझे ऐसे So that I'll रोटी drive. सब्जी ये सब That's the नहीं only चाहिए. time I have to eat. That- Yeah, you that's knew why about you- it, huh? Yes. मुझे He नहीं also पता gives था. biscuits in his office. कभी बैच के बीच में टाइम मिलता है like I'll eat some biscuits. Yeah, because you know कहाँ उसके लिए भी हाफ एन आवर वेस्ट करने का 15-20 मिनट ऐसा लगता है. मे बी रॉन्ग हियर बट I mean we'll give him a lot of options. सर ये खाना है, सर हम मंगवा के रखते हैं, सर आप आके give me something that is handy. मैं आके मेरा माइक पहनूं उतनी देर में मेरा हो जाना चाहिए. एंड मेरा लंच यही होता है. सुमूल डेयरी से सिटलाइट जाता हूँ, फॉइल ओपन करके आई ईट जस्ट 2 रोटीज. और सुमूल डेयरी से स्टेलाइट आने में किसी भी नॉर्मल इंसान को 20-25 मिनट्स लग जाता है. दिस पर्सन उधर से निकल के कॉल करेंगे, देखो आज मैं 2 मिनट्स लेट, इवन इफ he'll give us a call, मैं 2 मिनट लेट हुआ हूँ, मुझे 2 मिनट लेट होगा क्लास में आने के लिए, आप लोग संभाल लेना. हम बोलते हैं सर 2 मिनट्स. अब 2 मिनट आप 6 की जगह पे 6:02 को जाओगे तो कोई फर्क नहीं. This Diya is telling in what capacity, you know? Because after completing her 12th and before starting her education for the entrance of law exam, she worked here as a staff member as well to get some experiences over here. So, you know, that is the reason when I call some of my team members and I tell कि I'm running 5 minutes late, I'm running 2 minutes late. So even that was a good experience for you, I believe. I mean, I would say कि जितना मैंने एज अ स्टूडेंट सीखा है उससे कहीं ज़्यादा I have learned here as a staff. So one thing I love about him is the way he puts effort behind every student, right? He does not give preference to one student. भाई ये है तो इसको ही ज़्यादा ये सब कुछ एडवाइस देना है, वो सब स्टूडेंट सर के लिए एक जैसे और सबके लिए वो
एक समान एफर्ट रखते हैं, और इवन ही लाइक वो सबके लिए इंडिविजुअल मीटिंग्स रखते हैं उनके करियर गाइडेंस के लिए. दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू यार. Yes. I mean, yeah, how many students? 300, 400 students you have to manage. सबके लिए individual meetings for their career guidance, और वो भी pinpoint perfectly. Yeah. है ना, जब मेरे फादर और मैं जब आए थे यहाँ पे वो career guidance रिजल्ट के एक दिन पहले हाँ, result तब के तो एक पता दिन भी नहीं था पहले। इसका रिजल्ट कि गुजरात टॉप करने वाला. तब that was the first time my father met you actually. अच्छा ओके. वो हाफ एन आवर के कॉन्वर्सेशन में he was like so convinced that तुझे ये इंसान की ही सुननी है सिर्फ, और कुछ करना ही नहीं है मुझे. Like that's what I love about him. थैंक यू ओम, थैंक यू. कई बार ऐसे होता है, मैं पेरेंट्स को कभी कभी करियर गाइडेंस के टाइम मिलता हूँ ना, 2 साल बाद मुझे पहली बार मिल रहे होते हैं, तब मैं उनको पूछता हूँ आपने मलियाज न थी. एक फादर आए थे एक लड़की के, उन्होंने मुझे जवाब दिया बैठते बैठते, मतलब मैंने बोला आपने पहली बार मलिया છે? बोले हाँ. अच्छा આપણે 2 વર્ષ એટલે તમારી દીકરી ભણી મલિયા જ નથી આપણે? નેવર. और उनका रिप्लाई था जरूरत नहीं पड़ी. मैं बोला दिस इज द ट्रस्ट, यू नो, दिस इज द ट्रस्ट. So that is one thing that I always owe to the wonderful students and their parents. Even I remember the first time my parents met him was admission के time पे. He was just passing by, तब बात हुई थी. And then when they met me was on my result day. Sir ने same question पूछा था. The only reply my parents gave was, sir हम आपको as a person नहीं मिलते हैं, but रोज every day after your class she has a half an hour का lecture to speak on you. अब घर पे क्या एंड्रू सर ने ये बोला, ये सिखाया. And even my parents are so fully convinced, उन्होंने even they knew कि सर ये हमारे से ज्यादा है ना आपकी सुनती है. A1 भी which I got, of course they played a very big role, but of course I also told them कि ये आप लोगों के लिए बाद में, पहले it's for him. Oh, He saw that dream के I need to get an A1, and इसलिए I got an A1 because he dreamt of. इसलिए of course you are secondary, but if first अगर ये whatever my educational journey of 11th 12th has been about is only dedicated to one person, that is Andrew sir. Thank you Diya, thank you very much. Since we're talking about career counseling, so I told my dad told me that about career. So he's like, go and ask your dad. We'll have a meeting with your. I was like, dad. So he's like, Andrew sir. I'm like, yeah, obviously. So Oh, wonderful. my parents, they know that yes, you are my dad, because you have done everything except giving me birth, from guiding me and choosing my career path, Thank you, everything. So he's like, ask your dad, we'll have a meeting with your dad. I'm like, okay, I'll ask him. See, this is the trust, you know, that I'm so grateful to hear this, because these all things आज सुन पाया, नहीं तो कभी अभी और कोई मौका होता तो पता भी नहीं चलता कि these are the things that are happening. So I'm so grateful and I thank all of you. अब मुझे अभी भी याद है, शायद आपका एडमिशन था वो टाइम पे, नील was I think handling the admission, because मैं yes. एडमिशन में बहुत कम इन्वॉल्व तो वो हुआ. मैंने बोला था ना, आई वॉज वेरी चूजी. मैं इधर व्हेन वी केम फॉर द इंक्वायरी, तब भी मैंने नील सर के सामने भी ये बोला था, मुझे नहीं आना है ये ट्यूशन में. ओहो, अच्छा, ओके. इट्स लाइक फर्स्ट ईयर मतलब जर्नी माइनस से चालू हुआ था प्लस. हाँ, ओके. हाँ, इट वाज के फर्स्ट ईयर था ट्यूशन का, तो फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था. और ऐसा होता था कि ट्यूशंस को ऑफ कोर्स फ्रेंड्स के साथ जाना होता है, तो आई वाज Okay. नेवर कन्विंस्ड बाय दिस ट्यूशन. मुझे ऐसा ही था, नहीं, आई विल गो टू द ट्यूशन जहाँ पे मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं. ओके, ओके. और इधर कोई फ्रेंड ही नहीं था मेरा. नो वन फ्रॉम माय स्कूल But whom I called a friend, वो इधर से. But you left with many. Yes. फिर हम आए इधर इंक्वायरी के लिए, नील सर ने फॉर्म दिया. आई टोल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम आल्सो, मम्मा वहाँ फॉर्म नहीं आप पानी पाचू, आई एम नॉट फीलिंग दिस. एंड देन व्हेन उसमें you just passed by and you met and you asked me, I said कि सर डोंट फील बैड, बट मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना है. तो द ओनली 2 lines that you said was, girl, I'm not forcing you to join this institution, but wherever you go, mind well, you follow your studies and you follow your passion. बस after this 2 line I was sure मैं इधर ही आ रही हूँ. अब भी भर के देते हैं ये form. Okay, I didn't know that. And journey from there to getting the best student of the year. Yes, that best student of the year was मेरा dream. I mean from day one, जब से उन्होंने 11th की क्लास में बोला था कि हम सॉक्रेटिस्ट और बेस्ट स्टूडेंट, एवरीबडी ऑफ माय फ्रेंड्स न्यू. यू कैन आस्क इवन सारा, शी वाज अ वेरी गुड फ्रेंड. आई वाज लाइक, अगर ये अवार्ड मुझे उनके हाथों से नहीं मिला ना, तो फिर 11th 12th में मैंने कुछ नहीं किया. एंड जब वो व्हेन आई हैड दैट नेम ऑन दैट स्क्रीन एंड आपने जो इंट्रोडक्शन दिया था आके, 11 to 15 parameters में these 2 girls were the one who stood on the top of the pinnacle.
that was the time I think I Achieved. I have a place in his heart now. I mean, Wonderful. he considered Permanent me place. that much that I can get the student of the year out of both the branches. I mean, total 4 batches, and to stand out of all the students, and you telling this guy I've stood on the pinnacle in his eyes. I mean, that was the thing. कि हाँ, अब it's achieved. Now Now I it's have achieved. Okay. now I have fulfilled मेरी 2 साल की जितनी भी जर्नी. अब 2 महीने बाद रिजल्ट कुछ भी आए. एक्चुअली एक पॉइंट पे तो घर पे जाके यही था, मैंने बोला ये मिल गया ना, अब तो बोर्ड, अब मैं खुशी खुशी ऐसे हंसते हंसते दे दूंगी बोर्ड. अगर ये नहीं मिलता ना तो ऐसे आई वुड हैव दिस Again, completeness रहता. हाँ कि शिट मेरा, एंड दैट ड्रीम ऑफ गेटिंग दैट अवार्ड फ्रॉम योर हैंड्स, एक ही अपॉर्चुनिटी मिलती है. Yes, and we have, you know, around that, जैसा आपने बताया 10 to 15 parameters, and just to tell everyone who's listening, Diya, Sara, both of them, and today we have them both who, you know, दोनों को हमने we gave the award the best student of the year because they were putting a tick mark on all the parameters that we had, and when there are 2 people who reach the top, then फिर हम लोग उसमें से then we don't select because we need to be very sure कि okay fine who मतलब कैसे हम लोग, मैं, मेरी टीम, मैं बैठा, मैं हूँ, नील है, हम लोग सब बैठ के then we take a decision. And I'm so glad that we are here today informally discussing about all these things that happened throughout the 2 years. So, sir, I'd like to ask a question. Okay. No, the students who are right now in 12th, they are like multiple distractions like social media, friends, and that. Very much. I want to know some of the tips that you like to give them to overcome that distractions. Okay. See, good question you asked me. अभी जो यंगस्टर्स हैं, या जो, मैं यंगस्टर करके किसी और को बोलना नहीं चाहूंगा, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगेगा मैं बूढ़ा हो रहा हूँ. बट ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, एंड दैट डिस्ट्रैक्शन इज कॉजिंग दिस डिस्ट्रक्शन. ओके, अब इसके लिए क्या होता है, आई विल टेल यू द पाई प्रिंसिपल, PIE. P stands for purpose. You will never be distracted if your purpose is strong. That I always tell. If your purpose is strong, आपका फोकस कहाँ पे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर एक हाईवे पे ड्राइवर, वी हैव सीन पीपल नाउअडेज हु आर ड्राइविंग, आई स्ट्रिक्टली वुड प्रोहिबिट दिस टू ऑल दोज हु आर लिसनिंग. ड्राइविंग करते करते हम फोन हाथ में ले लेते हैं, यू नो दैट डिस्ट्रैक्शन कॉजेस एक्सीडेंट्स. आज मैंने कहीं पे स्टैटिस्टिक्स रीड कर रहा था मैं, कुछ 90+% ऑफ एक्सीडेंट्स दैट हैपन आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. द सेम अप्लाइज टू लाइफ. लाइफ के भी तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं, फेलियर्स होते हैं, वो एक्सीडेंट्स डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं. P stands for purpose. The purpose has to be very strong. अब अगर कोई ड्राइवर हाईवे पे मान लो 150+ की स्पीड पे चला रहा है, तो फोन बजेगा तो भी हाथ में नहीं लेगा, क्योंकि उसका ध्यान पूरा हाईवे के ऊपर है, क्योंकि उसको पता है नजर हटी दुर्घटना घटी. अब वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करेगा, क्योंकि उसका फोकस और पर्पस बहुत मजबूत है कि मैं फुल स्पीड पे जा रहा हूं, तो मैं डिस्ट्रैक्शन में अभी अलाउ कर नहीं सकता. तो आप लोग वॉट एवर कोर्सेज यू आर डूइंग, I have 4 people in front of me, all in different professions. He is going to pursue a future in finance. You are into law. You are into chartered accountancy. You are into company secretaryship. Wonderful. अगर पर्पस स्ट्रॉन्ग है, स्पीड सही है, तो डिस्ट्रैक्शन आएगा ही. जैसे आप सोचोगे ना, चलो मैं एक सोशल मीडिया ऐप ओपन करूं ना, आई हैव टू फर्स्ट कंप्लीट दिस. तो दैट मतलब व्हाट ओवरपावर्स व्हाट, दैट इज पर्पस. सेकंड इज इंटीग्रिटी. Integrity is, you know, what you do when nobody is watching you. That is integrity. कि भाई I am accountable to whom? अगर पेरेंट्स बोल रहे हैं कि भाई फोन यूज करना कम कर, तो मैं तो मानता हूं आगे पढ़ाई मत करिए सर. अगर ये एज में आके भी अगर आपको कोई बार बार बोल रहा है, then I don't think that you are skilled enough. तो वो इंटीग्रिटी इज समथिंग, यू नो, दैट ऑलवेज मेक्स यू डिसिप्लिन. दी आपने वो डिटर्मिनेशन की जो बात की थी, डिटर्मिनेशन इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रिटी. When you have a strong integrity, the discipline, the determination, it automatically pops up. E stands for excellence. So that is a PIE principle, PIE. Purpose, integrity, excellence. Now it's up to you whether you want to be mediocre in life or you want to be excellent in life. You know, scrolling endless amount of time on the social media and wasting time. These are the traits of a person who is mediocre. जो अपने comfort zone में बाहर निकल ही नहीं रहा, जो mediocre. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कौन सही है कौन गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि चॉइस आपकी है. We are what choices we choose, what choices we make. So some people, you know, they choose to be in the mediocre zone. कि भाई mediocrity में हम खुश हैं.
तो वहां डिस्ट्रैक्शन आता है। हम जैसे वो मीडियोक्रिटी के बंधन को तोड़ के व्हेन वी एंटर इनटू द फील्ड ऑफ बीइंग एक्सेलेंट, then these all distractions never come. You see excellent people, they will never have these habits, because these are the habits of those people who are in the circle of being mediocre. But when you look at any profession, when you look up, when you go into the category of being excellent, तो automatically ये distractions नहीं होते. So ये मुझे आपको जवाब देना रहेगा that when your purpose is strong, when your integrity has a very strong conviction, and you wish to be excellent in whatever profession you are choosing, आप जो भी profession में हो, आप be excellent in whatever you are, तो आपका mind automatically वो distraction से दूर हो जाएगा, because हम वो choose करेंगे ही नहीं, because something apart from that is looking interesting for us. आज हम choose social media या gaming इसलिए choose कर रहे हैं because हमें वो कुछ और से ज्यादा interesting लग रहा है. Human psychologies, we choose what is interesting for us. So when you put your priorities right and that is more interesting, this becomes less interesting and you will never focus on that. I'd like to ask you guys also, how did you overcame your distraction in 12th? I would only say go to Andrew sir, अपना एक अच्छा सा शेड्यूल बनवा दो और वो शेड्यूल बना के टाइम तुम्हें इतना ज़्यादा मोटिवेशन दे देंगे ना कि जब ऐसे तुम शेड्यूल देखोगे और तुम्हें पता चलेगा इतना इतना हो गया और इतना इतना वाकई ना, यू विल सी दैट पर्सन। नहीं, उन्होंने बोला था अगर मेरा शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो देन यू विल रीच नोवेयर। आई वुड जस्ट से गो टू हिम, आस्क हिम टू मेक अ शेड्यूल फॉर यू, फॉलो इट, दैट इज आंसर फॉर एवरी क्वेश्चन। फिर ना ही तुम्हें इंस्टाग्राम दिखेगा, ना ही स्नैपचैट दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। Okay, so one answer we got and that is schedule. एक शेड्यूल के हिसाब से आप फॉलो कीजिए. गुड. मेरे लिए फ़ोन तो डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं सर, क्योंकि मेरे को इतना डिटरमिन था कि मेरे को 95 लाना ही है। मैंने मेरे वॉलपेपर के ऊपर 665 लिख के रखा था सर। अच्छा, लास्ट 3 मंथ से मैंने 665 लिख के रखा था, 700 आउट ऑफ 665, और सर 665 आए। क्या बात करते हो, इतना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। सर ये सही में, मेरी मम्मी मेरे को पूछ रही थी कि ये 665 क्या है, मैं तेरे को नहीं पता चलेगा, मैं बाद में बोलूंगा। तो मम्मी ना रोज पूछ कर रही थी, मैंने तेरे को है ना मजा आएगा ऐसा, अभी पता नहीं, अभी मैं तेरे को तुमको बोलूंगा नहीं ऐसा। क्या बात है। एंड जस्ट टू ऐड टू द ऑडियंस, ओम है, मानव है, दे हैव टच द 95% पैरामीटर आउट ऑफ 100%, जो गुजरात बोर्ड में मैं स्पेसिफिकली आपको बोलूं तो बहुत डिफिकल्ट है टू गेट अ 95%। ठीक है, 90 पॉइंट के कुछ भी ऊपर आया मतलब वी आर गेटिंग एन A1 ग्रेड। टचिंग 95, congratulations to both of you. But you know, एक चीज जो आपके पास से मुझे पता चली, that is determination. Very good question you asked to all. Yes, Sarah, what would you like to add? Thing that I would like to add is that दिया ने बोला शेड्यूल, तो सर जब किसी का भी, मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेरा या किसी और का, किसी का भी शेड्यूल बनाना तो सर का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज योर गोल। सर कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि तुम्हें इतने लाना है, तुम्हें क्या चाहिए। इफ यू आर सेइंग 65%, सर विल नॉट आस्क एनी फर्दर क्वेश्चन, सर विल बी लाइक ओके, फिर उस हिसाब से सर आपका शेड्यूल बनाएंगे। तो सर का ऐसा है, सर इज नॉट लाइक कि तुम्हें इतना लाना है, फिर उस हिसाब से शेड्यूल बनाता है सर, एंड सर इज लाइक बस ये फॉलो करो, फिर आपको खुद से ही अंदर से मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ बस ये फॉलो करो तो फिर सब हो जाएगा। सो फिर डिस्ट्रैक्शन की तो बात ही नहीं आती। ओह वंडरफुल, थैंक यू सर। आई रिमेम्बर सर ने मुझे सेम क्वेश्चन बोला था, व्हाट्स योर गोल। मैंने बोला सर इतना गोल है, नेक्स्ट ईयर है ना आपके सॉफ्ट बोर्ड पे बाहर मेरा फोटो होना चाहिए बस। दैट्स द ओनली वन लाइन आंसर आई गेव। और फिर उन्होंने ही नाइसली रोट, ठीक है तो हम 700 में से 620 प्लस एम कर रहे हैं सो दैट यू विल बी ऑन द फोटोग्राफ नेक्स्ट ईयर बस। एंड देन दिस ईयर जब वो हमारा बताया, आपने वो मॉड्यूल प्रिंट करके दिखाया 630 से ज्यादा प्लस शायद, आई डोंट रिमेंबर द नंबर एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं। 630 प्लस पे A1 आता है। हाँ, आपने बोला था कि आपको कुछ भी करके 94 प्लस सारे सब्जेक्ट्स में एम करने पड़ेंगे, 4 मेन सब्जेक्ट्स में, एंड लैंग्वेजेस में अगर आप 80 प्लस भी जाते हो तो देयर आर हाई इनफ चांसेस के A1 आ जाए। एंड देन द डे जब वो हमारा प्रिंट होके आया, सबसे पहले स्टाफ में आके उन्होंने मुझे दिखाया कि यू नो योर ड्रीम, यू वांटेड टू बी इन द यू नो पेज एंड हियर इट इज बस। दैट, और जब वो बैनर लगा था ना, दैट वाज दैट, वो जब इंटरनल एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि किसी मेरा गोल आज मैंने अचीव किया, किसी मतलब यू नो अ पर्सन हु हेल्प्ड यू थ्रू आउट अचीविंग दैट गोल। तो कीप अ गोल इन योर लाइफ बस। इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रेट गोल तो कोई डिस्ट्रैक्शंस विल नेवर बी अ डिस्ट्रैक्शन टू यू, एंड दैट गोल बिकम्स योर मोटिवेशन। मोटिवेशन, एंड व्हेन द मोटिवेशन इज स्ट्रांग देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। गुड, वेरी गुड टेक अवे। मेरे को एक बात याद है
कि इकोनॉमिक्स की हमारी बोर्ड की एग्जाम पूरी हुई ना, तो आपका मैसेज आएगा, मानो कैसा गया पेपर। हाँ, तो मैंने बोला कि सर गोल्ड मेडल रेडी रखना। याद है आपने बोला था गोल्ड मेडल रेडी रखना। मैंने सर को बोला गोल्ड मेडल रेडी रखना। यस आई स्टिल रिमेंबर दैट चैट, गोल्ड मेडल रेडी रखना आपने बोला था एंड आई वाज सो हैप्पी। बट फिर मैंने अगले दिन न्यूज़ देखा गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे थे। जोक्स असाइड, and now we are off to the next section, and I don't know whether you people know it or not. We have arranged for, मतलब those who have organized, we have arranged for a fish bowl section रहेगा ये। मतलब इसमें क्या रहेगा? Don't search for fishes inside. We'll be passing on the bowl and we'll start with Om. Inside some questions are there. Even I don't know about those questions. आपको भी नहीं पता कि क्या questions हैं करके. But I really thank the organizers of this round table आज. उन्होंने थोड़े क्वेश्चंस बना के रखे हैं, सो विल पास ऑन द फिश बॉल टू यू। आपको एक एक क्वेश्चन उठाना है एंड यू हैव टू आंसर इन ब्रीफ अबाउट वॉट एवर द क्वेश्चन इज। ओम विल स्टार्ट विद यू। ओके, टेक द बॉल। What's the best piece of advice you have received at AJN that stuck with you? ओह वाह, So there's so many, not like I can pick one Okay. from what you have given. I would say, come on, this is harder than board exams. What advice should I tell best? I would say he has taught us to learn to say no. yes, That is, I think, still very helpful to me today. yes, Also, it helps in overcoming distractions, you know, learn the habit of telling a no. telling no to that friend gathering and that or family gathering. Learn to say no, which is like obstacle to you. yes, है ना? ये शायद आप लोग के बैच में भी बताया था। हाँ, आपने बोला एक मैंने प्रायोरिटाइजेशन में बोला था। शायद आप ओम नहीं बोलते तो आज इनकम्प्लीट रहता है। मतलब ये भी एक छोटा सा एक एडवाइस था, मे बी इट वाज अ 1 minute एडवाइस आउट ऑफ आवर्स एंड आवर्स ऑफ टीचिंग। सही टाइम पे आपको याद है, लर्न द हैबिट ऑफ टेलिंग नो। That's it. Learn to say. Good. Yes, Diya's turn. Which subject or topic gave you the toughest time? I would say, as such, sir के 4 subjects में से there was not a single subject which gave me a lot of time, because the teaching habit of sir, he would always taught us in 2 parts. पहले मेरे से सीख लो, फिर टेक्स्ट बुक से सीख लेना। And इंट्रोडक्शन कितना लंबा कर देते हैं हमने एक एंड हाँ, मतलब आई मीन सर का इंट्रोडक्शन ही क्लास का फर्स्ट हाफ होता था, एंड फिर सेकेंड हाफ में सर, फिर हमें पता चलता था अच्छा टॉपिक तो ये है, ये तो अभी तक का इंट्रोडक्शन था। तो एज सच सर के 4 मेन सब्जेक्ट्स में आई वुड से मुझे कोई ऐसा नहीं था कि आई हैड टू क्रैक अ नट और समथिंग। बहुत स्मूथली, बहुत ऐसे हंसते हंसते सर ने पढ़ाया है। एवरी कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से क्लियर हो जाते थे ना कि फिर ऐसा एक डाउट नहीं रहता था कि ये नहीं आता है या ये नहीं हो रहा है। एंड इफ ऐसा सम पॉइंट ऑफ टाइम कुछ थोड़ा डिफिकल्ट लगता था तो आफ्टर द बैच आई यूज्ड टू गो एंड क्लियर इट आउट विद हिम, तो वो सेम डे हो जाता था। एंड एज सर सेज कि मैं जितना भी करवाता हूँ घर पे जाके सिर्फ एक बार रिवाइज कर लो एंड यू आर डन। मैंने सिर्फ वही टेक्निक फॉलो की थी। ये तो मैं अभी बता रही हूँ, मैंने सर को भी नहीं बताया था। अपनी इकोनॉमिक्स के लाइक द डे व्हेन वी हैड इकोनॉमिक्स का बोर्ड, उसके पहले के राइट तो आई वेंट फॉर अ मूवी एट द 10:30 वाला शो। माय गॉड, रियली? I went for a movie and everybody in my house was also confused. काले एग्जाम છે કે નથી? मैं કીધું છે પણ એન્ડ્रू સરે ભણાવ્યું છે, શું ટેન્શન છે? And I went and बहुत अच्छे से एग्जाम भी क्लियर किया and everything. So या मेरे लिए ऐसे 4 में से कोई भी ऐसा एक सब्जेक्ट नहीं था जो मुझे पर्सनली टफ लगा हो। क्या बात है। So this is one thing where we match on one aspect, and that is मेरे बोर्ड एग्जाम के एक दिन पहले मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल रहा था। बस उसी से एक पीस ऑफ मोटिवेशन ये भी थी कि सर ने क्रिकेट खेला था, सर ने पूरे दिन खेला था, मैं तो सिर्फ 3 घंटे की मूवी देखने था। I still remember I took my bat, I was wearing my shoe and I was just taking the bat and going, and my father was reading newspaper. हाथ उन्होंने वो न्यूज़पेपर नीचे करके मेरे को पूछा, Where are you going? मैं बोला क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। कोई टीम ऐसी होती है जिनको हराना जरूरी है, आज हमारा वो टीम को हराना। फिर मेरे को पूछा बोर्ड एग्जाम कल से, कब से? क्या आज है? मैं बोला नहीं आज नहीं है, कल है। फिर वापस ही वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर
And then he saw me so relaxed. He'll never see me tensed before exam. And then he'll again put the newspaper down and he asked, accounts, sir? मैं बोला हाँ. अच्छा तो इतना relaxed है तो. And then he again started reading newspaper. And then I came in the night. हावी मत होने दो कुछ भी आपके ऊपर. That's the most important. अकाउंट्स की जगह पे सर की गुजराती या हिंदी की एक अकाउंट बोर्ड होती ना. क्रिकेट साइड में रख के मैं बुक लेके बैठा होता. Okay, thank you for the answer. Yes, Manav. If you create a fun rule for AGN classes, what would it be? What is the question? What if you? If you create a fun rule. Rule. अच्छा okay, मुझे रोल लगा. Okay, fun rule. अच्छा कोई एक rule. ये मत बोलना mobile phone should be allowed in the class. नहीं, even I have a better one from that. तो मैं चाहता हूँ कि क्लासेस में सर के क्लासेस वैसे सारे फनी होते हैं. नहीं होते. फन नहीं होते. नहीं तो फिर भाई कौन है तो डिबेट चालू हो गया. एक बोल रहा है फन होते हैं, एक बोलता है फन नहीं होते. सर मतलब वो हम ऐसे एक्साइटेड होते हैं आपके क्लास में आने के लिए. ओके. वही सर ऐसा बोर कभी नहीं लगा 2 साल में कि क्या ट्यूशन जाना है. आप ऐसे बोलते हो ना बारिश में भी हम तैर के आएंगे आपके क्लास में, पर आएंगे जरूर. सर उस एक दिन क्या हुआ पता है, बहुत बारिश आ गई थी और पानी भर गया था. तो अभी मैं और पता है आपको राजडोला ओके. वो मैं और राज दोनों टू व्हील लेके पानी में से आए सर. फिर रास्ते में क्या हुआ कि साइलेंसर में ना पानी चला गया और टू व्हील बंद हो गई. फिर हम रिक्शा में आए थे सर. और ट्यूशन आए. अच्छा ओके. माँ बाप कितने खुश होंगे मेरा बच्चा पढ़ने के लिए इतना कष्ट उठा रहा है. नहीं सर, स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन भी पूछते थे. सच में ट्यूशन जाने की एक्साइटमेंट. ऐसे कोई डाउट्स होते हैं अपने आप लोग का जब रिजल्ट आया था ना तो एक स्टूडेंट के 99 आए अकाउंट्स में. पेरेंट का फोन आया, मुझे पूछा कि एंड्रो सर बोलो છો. मैं बोला हाँ. મારા છોકરાએ રિઝલ્ટ બતાવ્યું એમાં અકાઉન્ટ્સમાં 99 લખેલા છે. मैं बोला हाँ आना જ છે. કીધું આना જ. एंड ही वो बोले मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा करके फादर इज टेलिंग. फिर फोन रख दिया. तुरंत वापस फोन आया वही नंबर से. फिर उठा के मुझे पूछा એના છે ને 11th માં 50 હતા. मैं बोला ओके. એટલે 12th માં 49 આવ્યા એટલે મળીને 99 આવ્યા. 11 12 मिला के देते हैं बोर्ड वाले. मैं बोला नहीं ये जो अभी उसने मार्च में एग्जाम लिखा उसका 100 में से 99 है. वो मेरे नहीं होई साहब. मैं कहा अरे તમારા સન્ના છે एंजॉय. So these are some fun rule नहीं पर funny things that keep on happening that makes us. नहीं, we can keep this fun rule कि छुट्टी लेने से पहले सर से परमिशन नहीं लेनी होती. नहीं लेनी होती है. हाँ ट्राई करो वापस स्टूडेंट बन के ट्राई करो. तब बताते हैं रूल कितना फन मेरे को है. एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरा एक फ्रेंड था आयामिक. तो वो एब्सेंट था Okay. सैटरडे को. और वो क्यों मंडे को आया था. तो वो आपसे परमिशन लिया. उसने बोला कि आपने सर ने पूछा कि क्यों एब्सेंट थे. तो सर ने बोला कि सर मैं है ना पासपोर्ट ऑफिस में गया था. हाँ. You had your mic on and we were able to listen what you were arguing. Really I forgot to put the mic off. तो उसने बोला कि सर मैं पासपोर्ट ऑफिस में गया था. तो सर ने बोला सैटरडे थोड़ी पासपोर्ट ऑफिस खुली होती है. पकड़ा गया. अच्छा. आपने सर उसको बहुत डांटा था. अच्छा नहीं मतलब फिर तो वो थोड़े स्टूडेंट्स हैं ना मुझे ऋत्विक करके एक लड़का था सिटीलाइट ब्रांच का था शायद बिफोर मेनी ईयर्स. नील के बैच के आसपास का था. उसने इतने टाइम बाद मुझे जब मिला अभी रिसेंटली तो वो मुझे बोला कि सर हम लोग है ना तैयारी करके आते थे कि क्या बोलना है करके. एक बार हम लोग 2 जन आए थे क्लास में. अभी भी मुझे इंसिडेंट्स याद है. और वो इंसिडेंट्स शायद और भी कोई एक जन था मेरे स्टाफ में. उन्होंने बोला सर हमारे ही बैच में हुआ था. 2 आए थे और दोनों ने वो आपने पूछा सर क्यों दोनों वो एब्सेंट थे. तो दोनों ने कहा सर साथ में बाइक में आ रहे थे बाइक पंचर हो गया तो 15-20 मिनट लेट हो गया करके. मैं बोला ठीक है नो प्रॉब्लम. दोनों को बाहर भेजा. एक करके बुला के मैंने बोला कौन सा टायर पंचर. पहला वाला बोला सर पीछे का टायर पंचर हुआ. मैं बोला समझ गया झूठ बोल रहा है. एंड देन सेकंड आया उसको पूछा कौन सा टायर पंचर हुआ. उधर है सर सॉरी सर. मतलब we all had a good laugh and then I told see एग्जाम हो गया एक्सक्यूज हो प्रिपेयर करके आने का. ओके. Finally, if AJN Life had a replay button, which moment would you relive first? Oh my God, this is like such a nice question. I would obviously, there are many moments that I want to relive, but it will obviously be the farewell day. We had so much fun. I mean, the day we gave farewell to the 12th standard, that also I would like to relive because we did so much,
me and Dia were anchors. Yeah. So we had fun at that time also, and also the day where we had our own farewell, obviously because I had received my award, so I was happy. But it was so fun, you know, seeing you, Neil sir, and all that in a very informal manner. And Neil sir was also, we had so much fun with him also. So it will be the farewell day, obviously. ओके बोलो, इतना पढ़ाने के बाद वापस रिलीव करना है तो फेयरवेल का दिन रिलीव करना है। But if we are given an option ना, तो हम तो पूरे 2 साल रिप्ले करवाएंगे। ओह क्या बात, हम तो पूरे 2 साल रिप्ले, from the first day when you introduced till the last day you said goodbye with that note, वो पेपर में जो आपने प्रिंट करके दिया। एक प्रिंटेड पेपर दिया था। गुड If AJN had a theme song, what would it be? Bye, don't surprise me and disappoint me. So, theme song. ओम को क्वेश्चंस भी ऐसे मिल रहे हैं ना कि बेचारे को सही में बहुत आंसर सोचना। ऐसा हो रहा है मुझे। और कैन वी गिव अ क्वेश्चन टू एनीबॉडी, किसी के भी माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है। That Hindi song which goes like जीने के है चाहे उसके जगह 2 साल कर देते हैं। 2 साल। ओके नाइस। और किसी को ध्यान में आ रहा हो? फिर हम ऐसा पता है वो गाना है ना मैथ्स में डब्बा गुल, तो अब हम उसके लिरिक्स चेंज कर देंगे कि ना अकाउंट्स में डब्बा गुल नहीं है करके। सर के 4 मेन सब्जेक्ट में डब्बे गुल नहीं है, बाकी 2 सब्जेक्ट में है। अच्छा कि आपने वो क्लियर किया कि नहीं है करके। Okay, these are some songs we can definitely put up. Okay. What's one thing you miss about being a student here? Actually everything. I mean 11th standard में 4 to 6 का बैच, 12th standard में 6 to 8 का बैच, बिकॉज ये पहला, मेरी तो लाइफ का ही पहला ट्यूशन है और पहली ही बार मुझे ऐसा, मैंने जहाँ से जैसे सुना था हाउ माई फ्रेंड्स रिएक्टेड के ट्यूशन इज़ अ प्लेस के आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें से कंटाला आता है, नहीं जाना है, बहुत ओवर प्रेशराइज करते हैं, ये पढ़ो वो पढ़ो। बट मैं जेन्युइनली बोलूँ, ये ट्यूशन में आने में देयर वाज नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो आई हैड। आई यूज्ड टू वेट, आई यूज्ड टू कम टू फ्रॉम स्कूल, कब 6 बजेंगे बैग, कब 6 बजेंगे, मैंने लाइक, और उसमें भी एट टाइम्स व्हेन एंड्रू सर वाज नॉट अवेलेबल तो नील सर 2 घंटे की क्लास लेते थे, तब तो ऐसा लगता था इतनी मज़ा नहीं आई, ऐसा एंड्रू सर का गुड इवनिंग 12th नहीं सुनने को मिला। एंड या सो वन थिंग विच आई माई सेल्फ मिस बीइंग हियर इज I miss the positive energy. I mean the 4 walls of this classroom. दिन में 2 घंटे जो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, मतलब ऐसे पता है एक सबके एक मेडिटेटिंग प्लेस होती है। फॉर मी मेरा एक क्लास वो मेडिटेटिंग प्लेस थी। टू सी हिम स्पीक, टू लिसन टू हिम, द वे ही टॉट, इसीलिए आई बेसिकली मिस वो, और जस्ट वो थोड़ा मुझे मिस ज़्यादा हो गया था ना, इसीलिए आई थॉट कि आई गो इवन आफ्टर स्टूडेंट आई वर्क हियर एज अ स्टाफ, बिकॉज आई वांट टू स्टे कनेक्टेड टू दैट पर्सन। At this point of time also I have told this to him ample number of times कि सर आपको कभी भी ज़रूरत हो ना, you just give me a call, no matter whichever part I am, I'll come to you एक ही call पे, because this institution, this premises, they actually feel like home here. ऐसे वो एक safe place बोलता है ना, बस ऐसी फीलिंग आती है इधर। तो that's the one thing कि वो दिन की जो 2 घंटे जो पॉजिटिव एनर्जी थी ना, वो अभी ऐसा लगता है मिस हो रही है पूरे दिन में। आ जाओ जब whenever you want come here, sit, study and go। थोड़े पास स्टूडेंट्स ऐसे भी करते थे, सर आके खाली 2 घंटे बैठ के पढ़ के जाए, हमारा कुछ भी पढ़ना हो तो। I'll be like always please do come, but I'll remember this, it's like a meditating place, you know, that's a very big credit you have given to this place, you know, this institution। मैं हमेशा कहता हूँ एक मंदिर से कम नहीं है ये जगह। Yes, it's true. Have you ever surprised yourself with a result better than you expected? Sir, expect तो कर लिया था इतना आगे करके 665 6 how much? 665 665 and you achieved it. yeah, okay, so you touched it at par। सो पर ऐसा कैसा हुआ कि परफेक्ट ही है सर? 665 ही है सर। मैंने वॉलपेपर पे सर ऐसा लिखा था 665 रेड कलर से और ब्लू कलर का बैकग्राउंड था, और सर परफेक्ट 665 है। इसका है ना 2 ही ऑप्शन है, ये राज ही रहेगा लाइफ टाइम कि ये कोइंसिडेंस है कि मैनिफेस्टेशन है। इसका आंसर किसी के पास नहीं है। और सर स्वर्ग में अगर हम कभी
परमात्मा को मिलेंगे तब उनसे पूछेंगे कि ये इत्तेफाक था या मेरा मैनिफेस्टेशन था करके. बट गॉड्स ग्रेस यू अचीव्ड व्हाट यू ड्रीम्ड ऑफ. और सर मैंने कंप्यूटर लिया था तो उसमें प्रैक्टिकल आता है तो टोटल है ना 750 में से आएगा रिजल्ट. तो मैंने रिजल्ट देखा तो मेरे को पता कि 715 आने ही वाले हैं. हाँ, तो 715 ही आए 715 क्योंकि कंप्यूटर प्रैक्टिकल में मेरे को 50 आउट ऑफ 50 मिले थे सर. अच्छा ओके ओके ओके. तो वो आपने ऐड किया था हाँ. 715. राइट 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 राइट. ओके. और एक दिन पहले रात को ना मम्मी ने पूछा कि कितने आने वाले तेरे. तो बोला क्या मैंने बोला कि कल देख लेना. तो मम्मी पूछ के एक तो बोल तो सही कितने आने वाले. मैंने बोला 665 आने वाले और 665 आए हैं. क्या बात है. गुड गुड गुड. सो दिस प्रूव्स कीप गुड टारगेट्स इन लाइफ and work for those targets. Next. If roles are reversed for one day, sir as a student and students as teachers, what would happen first? Sir would get mad. Obviously, sir would never tolerate us as teachers because इतने साल हो गए पर हम कभी भी एंड्रू सर की तरह नहीं पढ़ा सकते. कोई नहीं पढ़ा सकता इनफैक्ट एंड्रू सर की तरह. तो वो टाइम ऐसा होगा कि स्टूडेंट सर को पढ़ा रहा है ऐसा हो जाए. Okay. Nice way of putting it. Sir would rather choose leaving the class rather than studying. Rather than listening and rather than studying. Yeah, very true. And here we conclude the fishbowl round, fishbowl session. Random questions, and I really thank you for giving such wonderful answers. I once heard that if you have a burning candle and if you enter into a dark room, the depth of the darkness of that room, it's pitch dark, pitch black. But even the darkest room does not have the power to blow off that one burning candle. But that one burning candle has the power to eliminate darkness wherever you take that candle in the room. And I believe that that burning candle is education. And that darkness are the various problems, internal and external, that we are facing either within ourselves or we are facing outside us. And today, the 5th of September, the Teachers' Day, when we give a big salute to all the educators, when we really appreciate those people who have toiled hard and given their life to the field of education, are doing that work of the burning candle. But every burning candle, it once exhausts itself completely. But the candle never feels the pain because the candle knows that every time it was burning, it was giving light to others. When the pencil gets shortened and shortened and shortened, pencil को कभी ये दुख नहीं होता कि चलो अभी मैं डस्टबिन में फेंका जाऊंगा. पेंसिल को ये सुख मिलता है कि मैं जितना कम हुआ उतना किसी और का नॉलेज बढ़ा है. So this is the role of each and every educator. This is the role of each and every teacher in your life. I always believe the role of an educator is not to cut down the jungle, not to cut down the forest, but to irrigate the deserts. The minds of the deserts. वो जो हमारे पास जो deserts आते हैं उनके mind में irrigation create करना, that is the role of an educator. So on this day, I would like to take an opportunity to salute and to thank all the educators of this world, of this nation, to have ignited and kindled the fire in the minds of so many tender students and to bring out the best in them and to teach them the power of belief that if one child can dream, that child can make a big difference in their life. So today is the day when we really thank the entire community, and I also here on a personal note thank all of our students who came here, and through you I relived that 2 years of journey that I had in your batch. And you know, maybe ये session अभी खत्म हो रहा है, but I'm going back with again those memories that we created together. आपके बोलने पे वापस एक बार वो kindling हुआ कि these are the things that we did inside the class. So thank you, because I believe that teacher is incomplete without the students. So if people are wishing me today a Teachers' Day, it could not have been possible without all of you and without all of you wonderful students. Thank you all. Thank you very much.